1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 13 चैप्टर 24 वर्स से 43 वर्स, जेनेसिस 44 चैप्टर 45 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन से 43 वचन तक। उत्पत्ति की पुस्तक 44 अध्याय 45 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका वचन खाली नहीं जाता है। आपका वचन हमारे लिए पिता हमें ज्योति देता है, उज्ज्वलित करता है और हमारा जीवन तेरे चाल चलन परमेश्वर, तेरे स्वभाव और तेरे गुणों से हमको भर देता है। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन दुधारी तलवार है जो पिता परमेश्वर हमारे हर एक हिस्से में खुदा वो जांच पड़ताल करता है और हमारे अंदर कोई अंधेरे को रुकने नहीं देता है। हम धन्यवाद करते हैं रोज के रोज पिता परमेश्वर, तूने हमें ये चरवाही दिया है पिता, इसके अंदर से तू हमारी चराई करता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, तूने हमें कभी भी पिता व्यर्थ जाने नहीं दिया। हर बातों में खुदा परमेश्वर तूने हमारे जीवन को बचाए रखा। हमारे आगे आने वाले समयों के लिए इन वचनों के आधार देकर पिता हमें हौसला दिया और परमेश्वर हमको पार होने वाली सामर्थ्य अभिषेक भी किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड। इस समय खुदा परमेश्वर ये वचन हम जो पढ़ेंगे हमारे समयों को पिता परमेश्वर और बल दे और रोशनी दे और ज़्यादा परमेश्वर हम तेरे और तेरे साथ संगति में होने के लिए हमारी मदद कर। हम नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी बिनती प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मैथ्यू 13 चैप्टर 24 वर्स से 43 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। Matthew 13 chapter 24 verse से 43 verse. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy had done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Another parable spake he unto them, The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, saying,
I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. 37 verse से आगे पढ़ेंगे. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea, and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. बस हमको 43 वर्ष तक ही पढ़ना है, और एक बार पढ़ेंगे 41, 42, 43 वर्ष. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 24 वचन से 43 वचन तक पढ़ेंगे. जंगली बीज का दृष्टांत. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 43 वचन तक. यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोर कर चला गया. जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए. इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है. दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो. राई के बीज का दृष्टांत. 31 वचन से आगे. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया. स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया. वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं. खमीर का दृष्टांत. 33 वचन से आगे.
उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, संसार के अंदर शैतान की संतानें भी मौजूद है। ध्यान दीजिए, ये वचन बता रहा है हमको। ओके, परमेश्वर ने अच्छे बीज को बोया है। ओके, खेत संसार है। ओके, खेत संसार है। देखो, जो शैतान की संतान है वह उद्धार में नहीं आएगा। ओके, जो दुष्ट की संतान है वो उद्धार में नहीं आएगा। समझ में आया? आप चाहे जितना समय लगा दो उसके पीछे, वो उद्धार नहीं लेगा, क्योंकि वो मनुष्य का संतान नहीं है। मतलब वो मनुष्य जाति में नहीं है, वो दुष्ट की संतान है। ओके, तो दुष्ट के संतान को परमेश्वर ने अलग रखा है और मनुष्य का पुत्र अलग है। तो इस संसार के विषय में परमेश्वर बता रहा है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। मतलब हम मसीही लोग, ठीक है। अब मसीह संसार के अंदर मसीही लोगों का रहना परमेश्वर के राज्य के संतान का होना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और एक संतान क्रिएट हो गई है, यानी पहले नहीं थी वो। समझा? यानी यहाँ पर जैसे जैसे हम आत्मिक लोग बनने लगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के संतान बनने लगे, जैसे जैसे परमेश्वर के राज्य में हम एंट्री करने लगे, तो दूसरी तरफ से इस संसार के अंदर, ओके, ये खेत के अंदर अब शैतान ने अपने संतानों को भेजना शुरू कर दिया। आया समझ में? अब यहाँ देखो क्या लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। अब कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। ओके, तो ये जगत का अंत परमेश्वर ने निश्चित कर दिया है। ओके, कटनी जगत का अंत है। कटनी का मतलब क्या है? कटनी का मतलब है जो गेहूं है उसे कोठारे में, भंडारे में भर लिया जाता है, और जो भूसा है उसको अलग कर दिया जाता है ताकि वो जलने के जगहों में फेंक दिया जाए। ओके, वो जल के भस्म कर दिया जाए, उसका कोई काम नहीं रहता है। तो अब कटनी चल रही है। ओके, अब संसार के अंदर से प्रभु यीशु के लोग उठा लिए जा रहे और परमेश्वर के राज्य में भर दिए जा रहे हैं। ठीक है, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या कठोर इंसान है, अब भी वो शैतान ही की मानता है, परमेश्वर की मानना नहीं चाहता है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर अगर एक समय रखा है, वो समय के अनुसार प्रभु उसको उद्धार में ले लेगा। लेकिन कुछ ऐसे इंसान शैतान ने इस पृथ्वी के ऊपर भेजे हैं जो शैतान की संतान है। ओके, उसने भी बोया है। देखो, आत्मा से बोया है। हमारा जन्म कैसा हुआ है? आत्मा से, है ना। परमेश्वर के आत्मा से जन्म हुआ है। हमको परमेश्वर के वचन ने जिलाया है। ओके, जिलाया है यानी हमको कैसा जिलाया परमेश्वर ने? परमेश्वर की पहचान हमको होने लगी। ओके, तो शैतान कुछ लोगों को ऐसा जिला रहा है कि वो शैतान की को पहचानने लगेंगे। मतलब वो शैतान की बातों में आ जाएंगे, उसकी मानने लगेंगे, उसको वो बाप कहेंगे और उसकी वो संतान मानने में अपने आप में घमंड करेंगे। तो ये हो गया उनके अंदर, ये शैतान ने एक घर बना लिया है। ओके, ये
वो तो जॉन रेमिरेज के बारे में भी वही था। वो शैतान उस शैतान को पिता कह रहा, बाप कह रहा था, और जॉन रेमिरेज कह रहे कि शैतान उसको बेटा मान रहा था, है ना। तो जैसा हमारा परमेश्वर पिता हमको पिता है और हम उसके संतान, कैसे संतान हुए, उसके पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश किया और हम उसके संतान हो गए। ओके, हमको परमेश्वर की पहचान हो गई। तो वैसा ही शैतान का आत्मा ऐसे कुछ लोगों को ले लिया है जिसके अंदर, मतलब जो बोलते हैं ना, सोल बेचते हैं, वो शैतान को बेच डालते हैं। ओके, यानी खुद अपनी मर्जी से शैतान को स्वीकारते हैं, ठीक है, और खुद मर्जी से शैतान को स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और वो बोलते हैं चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। ओके, यहाँ कितना खुला खुला लिखा है, कटनी जगत का अंत है। ओके, यानी अभी जो अलग किया जाएगा बस उसके बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उनको वो कटने का भी डर नहीं है। ओके, उनका पूरा लाइफ, उनका सोल जो है वो कंप्लीटली शैतान का अमानत करके उन्होंने दे दिया है। तो जॉन रेमिरेज भी वैसे ही थे। ओके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाया। ये तो सच में एक बलवान को जैसा परमेश्वर छुड़ाकर लाता है। ओके, जो बलवान है खुद में वो ताकत रख रहा है। ओके, तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे बलवान के मुट्ठी को खुलवाकर उसके चंगुल में से लोगों को छुड़ाकर लाऊंगा। और पतरस के विषय में उसने क्या कहा कि नर्क के फाटक तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, है ना, प्रबल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये परमेश्वर ने दिखा दिया जॉन रेमिरेज के बारे में कि शैतान का कोई, उसका बाप बेटा का रिश्ता प्रबल नहीं हुआ। उसकी इच्छा शैतान के अंदर जो फंस चुकी थी वो परमेश्वर छुड़ाकर ला सकता है, ये जाहिर कर दिया परमेश्वर ने, है ना। तो ये जगह में प्रभु यीशु को जाहिर कर दिया, वो मृत्यु के वश के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है। ओके, और परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा, वो परमेश्वर के राज्य का स्थापित करने वाला, वो हमारा अभी उद्धार करता, हमको मृत्यु में से बाहर निकाल लिया गया है। ओके, ये सारा स्पिरिचुअलिटी है, ये शरीर के माध्यम से नहीं है जो हम शरीर से जन्म लेते हैं। जैसा वो निकोदेमस ने कहा था कि अगर एक बार अगर माता के गर्भ में से हम बाहर आ गए, अब दोबारा जन्म लेना मतलब दोबारा माता के गर्भ में कैसे जाएंगे हम, है ना। तो वैसा वाला बात नहीं है, ये वैसा नहीं है। ये आत्मा और पानी से जन्म दिया हमको परमेश्वर ने। ओके, आग से जन्म दिया हमको। और वैसा ही शैतान भी स्पिरिचुअलिटी को तैयार करा है। ओके, उसका एक ऐसा उसने एक हुद्दा बना दिया है, पोजीशन बना दिया है जिसके अंदर उसके ही लोग रहते हैं। ओके, जो किसी को नहीं मानते हैं, जो उसको ही मानते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे वो, चाहे जितना हो जाए। ये जॉन रेमिरेज की शुरुआत अगर देखेंगे तो वो कहता है मैं टूटे मन वाला इंसान था। ओके, एक समय ये रह चुका है बचपन में कि वो देखा है कि कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसके ऊपर वो असर आ रहा था और उसको रोना आ रहा था, और उसने सोचा मैं भी इस परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, और वो उस लाइन में जाके खड़ा हुआ और वो पासबान ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, और वो हाथ ना रखने की वजह से मन को और ज़्यादा चोट खाया। ओके, उसके अंदर और गहरा विश्वास हो गया कि परमेश्वर भी मुझे नफरत करता है, वो भी नहीं चाहता कि मैं उसको पहचानूं। ओके, तो उसके अंदर का टूटा मन, यानी हर मनुष्य शैतान का अधीन क्यों जाता है, क्यों अपने आप को बेच देता है, बहुत गहरा एग्जाम्पल है यहाँ पर। उनके अंदर वो परमेश्वर को ढूंढे लेकिन उनको परमेश्वर मिला नहीं। ओके, उनको निराशा हाथ लगी, किसी ने उनको दुख दे दिया परमेश्वर के विषय में। ओके, किसी ने उनका विश्वास उड़ा दिया परमेश्वर के विषय में। कोई ऐसी घटना घट गई कि उनका विश्वास उड़ गया कि परमेश्वर जगत में कुछ कर सकता है कि नहीं। ओके, वो ही एक एरिया ऑफ लाइफ है जो कमजोर कर दिया मनुष्य के इच्छा शक्ति को। ओके, और परमेश्वर के ऊपर से उसका ध्यान हटा दिया।
ओके, नहीं तो वो इंसान इंसान की तरह जो जन्म लिया उसके अंदर का विवेक बुद्धि अच्छा था, सही था, लेकिन जहां पर उसने चोट खा लिया उधर से उसका रास्ता कठोर हो चुका। ओके, और वही जगह से फिर शैतान उसका इस्तेमाल करने लगता है कि अब ये इंसान को मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं शैतान के कब्जे में। ओके, और वो उनको लगता है, घमंड लगता है उस चकाचौंध दुनिया को देखकर। ओके, उसके सारे रिचुअल्स करके, उसके सारी शक्तियां इस्तेमाल करके उनको एकदम एकदम कॉलर टाइट लगता है उनको। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ठोकर के साथ परमेश्वर को देखा है, उन्होंने परमेश्वर को प्यार के साथ नहीं प्राप्त किया। समझा? और शैतान ने उनको क्या दिया? सब कुछ जो उनको भाता है। ओके, उनको उनकी ज़रूरत है वो सब कुछ उनको दिया, क्योंकि उसको पता चल गया अब परमेश्वर से तो ये लोग ठोकर खा चुके हैं, अब इनको मैं कुछ अगर ऐसी झूठी झूठी बातों को दिखाता जाऊंगा तो इनका मन मेरे ऊपर आ जाएगा। ओके, उनकी चाहत मुझ पर बैठ जाएगी। ओके, और वो चाहत का ठिकाना उसने कब्जा कर लिया। उस ठिकाने से अब वो धीरे धीरे उनको वही सब कुछ है ये विश्वास दिलाया। ओके, और जब ये सब कुछ सही होने लगा तो फिर लोगों का मन खुश रहने लगा कि चलो कोई तो है हमारी सुधि लेता है। ओके, एक कम से कम एक इंसान कहीं तो कहीं आशा रखने की जगह को प्राप्त किया, ऐसी तसल्ली होती है उनकी। ओके, अब याद रखो, अंधेरा ऐसी चीज है जिसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन आना पड़ता है। ओके, परमेश्वर का इंटरफियरेंस आना पड़ता है। परमेश्वर ने अंधेरे में घुस जाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, वायलेंट एग्रेसिव होकर जाना पड़ता है और लोगों को अपने आप को बताना पड़ता है। जैसा जॉन रेमिरेज के सामने शैतान आता था, बैठता था, जाता था, वो शैतान को पहचानता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अंधेरे को चीर कर उसको आवाज लगाई, ओके, उस समय उसको पहचानने नहीं आया ये क्या है। समझ में आया? तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम था ये क्या है, ये कौन मुझे पुकारा है। और फिर वो सोया तो उसके बाद भी वो बोलता है कि मुझे ऐसे जगह से ट्रैवल कराया जैसे मैं किसी ट्रेन के अंदर से जा रहा हूँ, और इतने स्पीड की ट्रेन है वो जो मैंने अभी तक कभी उस ट्रेन में प्रवेश नहीं किया था, और वो सीधे जाकर ऐसी जगह में पहुंचाई गई जहां से मैं कभी लौट कर नहीं आ सकता था। और उधर लेकर जाके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस जगह के लिए बनाया गया नहीं है? क्या तू इस जगह में रहना चाहता है या नहीं? फैसला कर ले। ओके, उसने कहा यहाँ पे थोड़ी, मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ, ये क्या जगह है ये मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, अगर तूने मेरा बात माना नहीं, ओके, तो तुझे यहाँ रहना पड़ेगा और मैं उसको कुछ बदल नहीं सकता हूँ। ओके, तो वो उसको वहीं पर छोड़कर चला आया था। ठीक है, और तभी जॉन रेमिरेज ने बोला, नहीं, मैं इस जगह में नहीं रहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है जगह। और उसने यीशु को मान लिया कि नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। तो यीशु मसीह ने उसको उद्धार के दर्शन से भर दिया और वहां से उसका उद्धार हो गया। ओके, तो इसका मतलब परमेश्वर को उस अंधेरे को चीर कर जाना पड़ता है। आया समझ में? उनको अपने आप प्रकाशन नहीं मिलेगा, उनको उनके ऊपर प्रार्थना करना पड़ता है, उनके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनके लिए परमेश्वर के सामने उनके नामों को उठाना पड़ता है। ओके, उनके उनके जीवन के मसलों को परमेश्वर के सामने उजाले में लाना पड़ता है ताकि रोशनी पड़े उनके ऊपर। समझ में आया? बिना परमेश्वर के रोशनी के वो नहीं पहचान सकते परमेश्वर क्या है। ओके, तो ये तरह है कि यहाँ जगत के अंदर इंसान आराम से ठोकर खाया परमेश्वर से। अब क्या है? अब उसने क्या पकड़ लिया? जो मुझे सब कुछ दे रहा है उसको, बस वही मेरा सब कुछ, ऐसा मान लिया। अब उसके पीछे हो लिए अपना प्राण। शैतान देखो कैसा शाना है, उसने क्या बोला? तू मतलब मनुष्य को, ऐसे लोगों को वो बोलता है अपने प्राणों को बेच दो मुझे, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे प्राण को खरीद लिया है।
तो उसने भी क्या किया, मनुष्य की इच्छा को पहले मोहित किया अपनी तरफ। सब जो उसकी मनोकामना है उसको देके देके खुद परमेश्वर ने ऐसा दिखा दिया, और परमेश्वर का जैसा उसको सब कुछ अच्छा करते करते आखिरी में उसने एक बहुत बड़ी चीज मनुष्य से मांगी। उसने कहा तेरा प्राण मुझे दे दे। ओके और इतना सब कुछ किया हुआ काम के बाद में मनुष्य आसानी से उस मोह माया के जाल में फंस के उसने क्या कर दिया, अपने प्राण को शैतान को देना शुरू कर दिया। ये हो गया अभी दुष्ट के संतान। ओके ये अब निकल पड़े हैं दुष्ट की सेना बनकर इस पृथ्वी के ऊपर। है कौन वो लोग? मनुष्य ही, लेकिन उनका प्राण उन्होंने शैतान को बेच दिया। ओके यीशु मसीह को हम कैसे पहचानते हैं? हमारे प्राण को उसने खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? लहू को देकर, लहू का बलिदान देकर खरीद लिया। तो इसका मतलब खरीद लिया, तो वो दाम दिया किसको उसने? क्वेश्चन मार्क है ना, कि खरीदना मतलब कोई तो उसका रखने वाला होगा, और उसके रखने में से हमको अगर लेना है, छुड़ौती कराना है उसकी, तो उसको कुछ दाम देना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने लहू का दाम दिया। तो वो दाम दिया किसको उसने? ओके तो न्याय करने वाला परमेश्वर है ना, उसके हाथों से मनुष्य को छुड़ा लिया उसने। समझ में आया? तो मनुष्य को खरीद लिया यीशु मसीह ने, परमेश्वर के डिस्ट्रक्शन के प्लान में से उसने निकाल लिया उसने। ओके परमेश्वर को लहू का अर्पण दिया उसने, और उस अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकारा। और परमेश्वर ने जो प्लान रखा था कि ये मनुष्य जाति नहीं रहने वाली है, खत्म होने वाली है, मैं इसको पृथ्वी के ऊपर रहने नहीं दूंगा, उसी मनुष्य जाति को परमेश्वर के हाथों से यीशु मसीह ने निकाल लिया है। समझ में आया? अब परमेश्वर का क्रोध नहीं है हमारे ऊपर, अब हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम है, बेनिफिट्स है। परमेश्वर के घर में है हम, परमेश्वर के फैमिली में है हम, परमेश्वर के संतान है हम। हालेलुया। तो इस प्रकार से खरीदने का अर्थ समझिए आप, कि परमेश्वर के बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमको। समझ में आया? और परमेश्वर के हाथों में हम क्रोध के संतान थे। ओके जिसको खत्म होने के लिए रखा गया था, पनिशमेंट में डाल के खत्म करने का जगह में रखा गया था। उस जगह से परमेश्वर का हाथों में से यीशु मसीह ने हमको यीशु के लहू को अर्पण करके हमको छुड़वा लिया, पनिशमेंट के ऑल्टर पे से हमको छुड़ा लिया। समझ में आया? खून ये दाम है जो यीशु मसीह ने बहाया। ओके और वो दाम परमेश्वर के लिए चाहिए था। जब आबेल ने भी कुछ भेंट लाई थी, उसने क्या लाया था? उसने यही लाया था, जो भेड़ अच्छी वाली पहलौठी है उसको लाया था, है ना। और वैसे ही जब आदम और हवा ने पाप किया था तो क्या पहनाया था? चमड़े का वस्त्र पहना था। ओके चमड़ा मतलब आप उस शरीर का कोई चमड़ा है तो उस शरीर में लहू निश्चित रहता है ना। तो यीशु मसीह को भी बारे में बताया है कि उसने लहू बहाया। ओके पापों के माफी के बारे में इस्राएल के हर विधियों में देखेंगे तो पश्चाताप करने वाला जो समय साल में एक बार दिया जाता था, उसमें जो निर्दोष मेमना है उसी का बलिदान करके लहू उस जगह छिड़के जाते थे। ओके ये सारा लहू का एरिया ऑफ लाइफ जो है वो परमेश्वर दाम कहता है उसको। ओके अगर मनुष्य को इसमें से छूटना है तो उसको लहू बहाकर बलिदान देना पड़ेगा, और वो लहू बहाकर बलिदान देने का भी उसने एक पशु तैयार रखा था। वो पशु था निर्दोष भेड़, मेमना। ओके निर्दोष मेमना। समझ में आया? तो ऐसी वैसी मेमना नहीं, निर्दोष। ओके तो ये जगह में परमेश्वर ने यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा के मुंह से क्या बुलवाया? ये देखो, जगत के पाप हरण करने वाला मेमना। समझ में आया? कोई गाय नहीं, कोई बैल नहीं, कोई बकरा नहीं, कोई बकरी नहीं, ओके कोई पशु पक्षी नहीं, मेमना। खास तरह से उसने जवाब में शब्द इस्तेमाल किया है, मेमना। समझ में आया? और हर जगह में पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान किया इस्राएलियों ने, तो वो मेमने को ही बलिदान किया है। ओके यहाँ पे वो एक एरिया ऑफ लाइफ है, हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर लहू के कारण इस्राएल के
पाप माफ करता था, साल में एक बार उनको वो बलिदान चढ़ाना पड़ता था, तभी साल भर वो परमेश्वर के बेनिफिट लेते थे। तो लहू एक एरिया ऑफ लाइफ है जो परमेश्वर के सामने हमको देना पड़ता था। जो परमेश्वर को देना था वो मेमना ही का था, कोई दूसरे किसी का नहीं। कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं। आपके पाप मौजूद रहेंगे, आप परमेश्वर के बेनिफिट को नहीं पा सकते हैं। समझा? अगर पाप आपको नहीं चाहिए और परमेश्वर के बेनिफिट चाहिए तो मेमना का लहू ऑल्टर के ऊपर साल में एक बार चढ़ाना इस्राएलियों को कंपलसरी था। समझ में आया? तभी जाके साल भर उनको परमेश्वर की सारी बैकिंग मिलती थी। ओके, वैसा ही आज के टाइमिंग में है। अगर यीशु मसीह का लहू अगर चढ़ाया नहीं जाता क्रूस के बलिदान से, तो परमेश्वर के बैकिंग मनुष्य को नहीं मिल सकता था। समझ में आया? अब मनुष्य को ऑलरेडी परमेश्वर का बैकिंग मिल चुका है, लेकिन अब इस बैकिंग को विश्वास के द्वारा हमारे लाइफ में हमको स्वीकार करना है। ओके, अब हमारा इतना ही काम बाकी है कि हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ होने के लिए परमेश्वर के ऑल्टर के ऊपर उसके लहू को बलिदान किया। वो बलिदान किया हुआ लहू के कारण अब परमेश्वर हमारी ओर से है। ओके, उसके बेनिफिट्स हमारे लिए है। ओके, अब वो हमारे संगति में शांति के साथ है। ओके, उसका गुस्सा नहीं है हमारे ऊपर। ओके, वो श्राप नहीं दे रहा है हमको, वो आशीषित कर रहा है हमको। ओके, वो लहू ही उसका कारण है। ठीक है, अब परमेश्वर का ये बेटा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने दाम देकर मनुष्य को खरीद लिया है। हालेलुया। उसने बोला मैंने मोल चुकाकर मनुष्य को खरीद लिया है। ओके, तो मोल किसको दिया? परमेश्वर को। और वो न्याय के आसन में बैठा हुआ है। उस मोल को अगर आप नहीं दोगे तो वो मनुष्य मारा जाएगा, हमेशा के लिए वो अनंत काल के नाश में चला जाएगा। उस जगह में से संसार के मनुष्य को उसने छुड़ा लिया था। ओके, लेकिन अब संसार के अंदर और एक संतान तैयार होने लगी है। ओके, अब शैतान दोबारा वही चाल चल रहा है जो उसने हव्वा के समय शुरू किया। ओके, वो संसार के अंदर लोगों को क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे प्राण को खरीद लेता हूं। ओके, कैसे खरीदना शुरू किया उसने? उसने बोला तुम खुद मुझे तुम्हारा प्राण दो, अपनी मर्जी से दो। समझा? अब यीशु मसीह इस जगह में जो काम किया है, उसने हमको बिना कुछ मांगे हमारे प्राण को उस कठिन जो आने वाली हमारे ऊपर दंड परीक्षा थी, जो हमारे ऊपर पनिशमेंट थी, उसमें से हमारा जीवन प्राणों को उसने छुड़ा लिया। ओके, वो प्राण को छुड़ाते समय हमको पूछा नहीं क्या तू यीशु मसीह में आना चाहेगा, क्या तू परमेश्वर को जानना, नहीं। उसने सारे संसार के मनुष्य के लिए पूरी तरह से छुड़ौती कर ली। आमीन। अब बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं, अब सिर्फ विश्वास करना। तो कुछ लोगों ने परमेश्वर से ठोकर खा ली, जो परमेश्वर को ढूंढने निकले थे और हाथ नहीं लगा, निराशा लगी हाथ में। अब शैतान ने उनको बोला चलो मैं तुम्हारा बॉस बनता हूं अभी। ओके, तुम चाहोगे वो सब मैं तुमको दूंगा, तुमको चाहिए वैसा सब मैं करके दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? तुम्हारे प्राण को मुझे दे दो। तो प्राण क्या है? लहू। तो इन्होंने अपने लहू को शैतान के ऑल्टर के ऊपर उंडेल दिया। ओके, यीशु मसीह ने लहू को उंडेला था तो परमेश्वर के बेनिफिट मनुष्य को मिलने लगे। शैतान के ऑल्टर पर मनुष्य ने जाकर मनुष्य का लहू उंडेला। ओके, और उनको खुद अपने मर्जी से शैतान के हाथों में दिया। तो अब ये क्या बन गए? दुष्ट की संतान बन गए। समझ में आया? इतना खतरनाक कवनेंट के अंदर जाने के बाद, वाचा के, शैतान के वाचाओं के अंदर जाने के बाद, और फिर परमेश्वर ने जॉन रेमिरेज जैसे इंसान को उतनी गहरी चाल में से बाहर निकाला, तो आप कौन बनते हैं?
है ना। मनुष्य मनुष्य है, ओके। परमेश्वर जानता है मनुष्य को कैसे छुड़ाना है। आमेन। इसके लिए परमेश्वर दुष्ट की संतान जिसको कह रहा है वो शत्रु के द्वारा जन्माई गई है, यानी उनको रेवलेशंस मिल रहा है शैतान की ओर से, प्रकाशन उनको जन्म दे रही है शैतानी काम करने के लिए। समझ में आया। प्रकाशन में से वो समझ रहे हैं कि शैतान उनका मालिक है, शैतान उनका कुछ करने के लिए है, शैतान उनके साथ है, शैतान उनकी सहायता में है, शैतान बुरा नहीं है, शैतान जो भी करेगा वो सही करेगा। ये सारा उनका क्यों, कैसे शुरुआत हो गया शैतान की तरफ। शैतान ने उनको प्रकाशन देना शुरू किया। ओके, हव्वा ने फल खाया ना, तो फल खाया, फल खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, प्रकाशन आया उनको कि वो नग्न है ना। उनको परमेश्वर के आवाज के सामने नग्न रूप में नहीं जाना है, उनको डर लगा परमेश्वर के आवाज से, है ना। तो ये क्या किया, ये उन्होंने काम ऐसा किया जो परमेश्वर के विरोध था, और शैतान ने वही रीतियां लोगों को सिखा के उस काम में चला लिया। अब क्या है, वो परमेश्वर का सामना करना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। तो अंधेरा उजियाले को पसंद नहीं करता है, ओके। और ये कौन है, दुष्ट की संतान है, ओके। किसने बोया, शैतान ने बोया। तो ऐसे लोग इस संसार में अभी मौजूद है। समझ में आया। इस संसार के अंदर ये लोग मौजूद है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि और काटने वाला स्वर्गदूत है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है, ओके। ये दुष्ट के संतान, शैतान के संतान को राज्य के संतान से, परमेश्वर के संतान से अलग करना है, ओके। अब ये दो जाति अलग कैसे होंगे, इसको अलग करने के लिए स्वर्गदूत भेजा जाएगा। हालेलुया। ये आप प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हालेलुया। देखो, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, हालेलुया, दुष्ट के हाथों में फंसाए गए अगर जॉन रेमिरेस छुड़ाए नहीं जाते थे तो आज उनके लिए ये वचन सच हो जाता था। उनको स्वर्गदूत अपने कब्जे में लेकर उसको अग्नि में डाल के जलाने के लिए, भस्म होने के लिए फेंक दे सकता था। अगर आप और हम प्रभु यीशु के अंदर उद्धार आज नहीं पाए होते तो आज हमको भी स्वर्गदूत ने पकड़ के आग में जलाने के लिए फेंक दिया होता। समझ में आया। तो आपको समझ में आना चाहिए, जब तक सुसमाचार पृथ्वी के ऊपर चल रहा है तभी तक सिर्फ आप यीशु मसीह को स्वीकार पाओगे। उसके बाद समय खत्म होने वाला है। उसके बाद का समय स्वर्गदूत दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है, ओके। जो प्रभु यीशु के हैं वो अलग हो जाएंगे, जो प्रभु यीशु के नहीं है वो अलग कर दिए जाएंगे। जो प्रभु यीशु के नहीं है उनका बोल दिया है यहाँ पर, वो जंगली दाने हैं, वो शैतान की संतान है और वो शैतान के द्वारा जन्माए गए हैं, बोए गए हैं इस संसार के अंदर, और उनको स्वर्गदूत पहचान लेगा और पकड़ के उनको आग में जलाने के लिए फेंक देगा, और वैसा उनका फिर अंत हो जाएगा। हालेलुया। तो किधर भविष्य जाता है, जो शैतान के द्वारा दुष्ट की संतान बनाए गए हैं, जो शैतान के रेवलेशन से प्यार रखे हैं, जो शैतान की मनमानी में अपने आप को रखे हैं, उनको स्वर्गदूत पहचान लेगा। समझ में आया। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वर्गदूत रचना किया है परमेश्वर ने, ओके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसके लिए हमको डरने का नहीं है उनके साथ, ओके। स्वर्गदूत पहचान लेता है ये कौन है, ओके। और फिर परमेश्वर के संतान के अलग होना, और ये जो दुष्ट के संतान है उनको पकड़ लेना, आग में जलने के लिए फेंक देना, बस हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो हमको उनसे कोई वास्ता नहीं है, स्वर्गदूत हमारी सहायता में है। आमेन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, हालेलुया, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा
इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। रिबांति खब्बा अशकर खासे है कब्बो उताल रबा खासा। देखो मैं आपको और एक बार बताती हूँ, अगर जॉन रेमिरेज को नहीं निकाला गया होता तो आज उसका ये भविष्य हो सकता था। ओके, क्या भविष्य हो सकता था कि स्वर्गदूत का उसको सामना करना पड़ता था। वो मनुष्य को तो बच के निकल जाएगा, हाँ, मनुष्य को वो कुछ भी बुरा करके भाग तो जाएगा। भाई स्वर्गदूत से कहां भागेगा तू? आमेन। जब दुष्टता करते हो तब ध्यान रखो हमारे हाथ से बच जाओगे, खुदा के स्वर्गदूत के हाथ से बचे नहीं रहोगे। हालेलुया। तो इसके लिए मैंने हमेशा जोर मारा है इस बात के ऊपर, दुष्ट का अंत निश्चित होता है, निश्चित। भाग किधर भागना है? भाग, दुनिया छोटी पड़ेगी तुझे, इतना ही नहीं यूनिवर्स छोटा पड़ेगा तुझे। तू जहां भागेगा उधर से पकड़ के लाएगा स्वर्गदूत और डालेगा किधर? अग्नि में जलाने के लिए। जा जल अभी। हालेलुया। तो ये तरह से आपका मुकाबला है स्वर्गदूत के साथ भाइयों और बहनों, समझो, ठीक है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार नहीं किया होगा तो अब आपको सिर्फ उतना ही समय बाकी है जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता है। ओके, उसके बाद आप भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद का समय आप भूल जाओ, आप यीशु 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 करते रहो, आपकी पुकार वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये दया का समय है, ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर की दया अभी आपको पुकार रही है, यीशु मसीह को स्वीकारो। लेकिन आपने अपने खून शैतान के वेदी के ऊपर डाल रखा है, अब उसकी शक्तियां आपको वहां से निकलने नहीं देती है। हालेलुया। अब परमेश्वर के बिना आपको कोई छुड़ा नहीं सकता है, समझा? यही एक रास्ता है जो परमेश्वर की दया ही आप तक पहुंच सकती है और आपको छुड़ा सकती है। ओके, और मारो जितने डींगे मारना है, करो जितना चाहिए उतना, जाओगे कहां? हालेलुया। स्वर्गदूत का सामना करने से आप बच नहीं सकते हैं। आमेन। आप ये कैमरा से बच सकते, वो कैमरा से बच सकते, यहाँ से घूम सकते, वहां से घूम सकते, ये उछाल सकते हो, वो छलका सकते हो। भाई करो, मनुष्य को धोखा देना आपको आ जाएगा, लेकिन स्वर्गदूत की भी सोच कर रखो। हालेलुया। इस तरह से आपको मुकाबला होने वाला है, हम सबको मुकाबला होने वाला है। जो मसीह है वो अलग कर दिया जाएगा, जो मसीह नहीं है खत्म कर दिया जाएगा, वो बात को पकड़ लिया जाएगा वो, और फेंक दिया जाएगा आग में। फिर चीखो और चिल्लाओ, कोई सुनने के लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण, यानी जो मसीहों को सताते हैं, जो मसीहों को परेशान करते हैं, जो मसीहों को बंदिश करते हैं, हाँ, उसके राज्य के लिए बोला। ओके, समझ में आया? यानी उसका जो परमेश्वर ने नया सृष्टि बनाया हुआ जो जगत है, उसके अंदर जो लोग हैं, वो लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है। ओके, वो कह रहा है वहां पे अगर कोई भी ऐसा दुष्ट जन अपनी बहुत बढ़ाई मार रहा है, बहुत घमंड चढ़ा रहा है, हम सताए जा रहे हैं, ऐसा अगर कुछ भी ठोकर का कारण है, ओके, और कुकर्म किए जा रहा है, सबको स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। हम इकट्ठा करेंगे? नहीं। हम कुछ बदला लेंगे? नहीं। खत्म करो, आपका बदला ले लिया है हमारे परमेश्वर ने। समझ में आया? तो हमको यहाँ पर जो परमेश्वर ने दिया है वही जीना है, जो परमेश्वर ने नहीं दिया है हम उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। उसका निश्चित हो चुका है, जो होना है वो निश्चित हो चुका है उनका। ओके, अब वहां वो अंधेरे के कब्जे में पड़ चुके हैं, उधर से उनका छुटकारा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सिवाय परमेश्वर की दया अगर उसको छुड़ाएगी तो। ओके, इसके लिए हमको उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। समझ में आया? ताकि परमेश्वर और हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, इसकी वजह से वो जाके उनको छुएगा, उनको उस ऑल्टर के ऊपर से उनका खून मिटा देगा और शैतान को बोलेगा अब तेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। अब वो परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए, ये ही कहा गया है पतरस को कि नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे कलीसियाओं के विरोध में।
ओके, शैतान के हाथों से मुट्ठी को खुलवाकर और उसकी ताकत जड़ को तोड़कर इनके प्राणों को छुड़ा कर लाता है यीशु मसीह के नाम में। ओके, ये सामर्थ्य अभिषेक अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने अभी हमारे अंदर रखा है। अगर हम इस बात को नहीं लेकर चलेंगे तो लोग मरते जाएंगे, क्योंकि उनको बचाने का उनके पास जरिया बाकी नहीं है। ओके, वो अपने आप को खो देंगे, क्योंकि उनको शैतान छोड़ने नहीं देगा। कुछ करो, कुछ भी करो, वो उसको वो छोड़ने ही नहीं देगा। ओके, क्योंकि उन्होंने खुद उनके खून को उसके वेदी के ऊपर अर्पण चढ़ाया है। अपनी मर्जी से उन्होंने अपने खून को उसके वेदी के ऊपर डाल के रखा है। हालेलुया। उस वेदी को तोड़कर, उस वेदी के सारे नियम को तोड़कर, उस वेदी के सारे बंधन को तोड़कर सिर्फ यीशु मसीह उनको बाहर ला सकता है। ओके, और वो होना चाहिए, आपको चाहिए तो वो शक्ति परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, हम कलसिया के अंदर रखी है, और यही शक्ति उन लोगों को परमेश्वर के दया के साथ मुलाकात कराती है और उनको उस वेदी से छुड़ा कर लाते हैं। हमको छुड़ा कर लाया है, आपको छुड़ा कर लाया है, अब अन्य जातियों को और भी ज्यादा छुड़ा कर लाना है। हालेलुया। ये प्रकार से हमारा इकट्ठा परमेश्वर के अंदर एक मन होकर प्रार्थना करना और लोगों के जीवन उस वेदी के ऊपर से जो शैतान ने बांध कर रखा है उनको, उसको तोड़कर निकाल कर लेकर आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस काम के लिए जो कुव्वत चाहिए वो हमारे अंदर अभी मौजूद है। आमेन। इसके लिए आप और हम ज्वलंत रहना है परमेश्वर में। देखिए आगे क्या लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, जब लोगों का छल करते हैं ये दुष्ट संतान लोग, तब दांत निकाल निकाल के हंसते हैं, है ना, और आंखें मिचला मिचला कर लोगों को चिढ़ाते हैं, है ना, कि देखते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजा उड़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब उनका वो समय स्वर्गदूत पकड़ लेगा उनको और उसमें आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, वहां पे क्या होगा, रोना होगा, है ना, और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो अभी रोने की आवाजें लगाते, अभी यहाँ वहां से रोने की आवाजें लगाते, चिल्लाने की आवाजें लगाते, धूम धमाल लगाते, सब कुछ फटकार लगाते, सब करते हैं, सब करते हैं। ओके, सब करते हैं, एग्रीड, सब करते हैं। भाई तब क्या करोगे जब स्वर्गदूत पकड़ लेगा? ओके भाई, तब क्या करोगे जब आप आग के कुंड में डाले जाओगे? हाँ, तब क्या करोगे? कहाँ जाएगी आपकी ये सारी शक्तियां जो जिसके नखरे आप हमारे सामने दिखाते, है ना, जो दुष्ट जगत हमारे सामने, मसीहों के सामने जो नखरे दिखाते हैं, भाई तब का सोचा है क्या आपने? ओके, तब क्या करोगे? इसके लिए हम हंसते हैं दुष्टों के ऊपर। समझ में आया? क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनका भविष्य क्या इंतजार लगाया है। हालेलुया। इसके लिए हमको किसी के साथ दुश्मनी करने का आजादी नहीं है। कोई मनुष्य के साथ हमको टेढ़ा बने रहने का आजादी नहीं है। कोई मनुष्य के ऊपर हम लगातार श्राप बरसाने का हमको आजादी नहीं है। ऑलरेडी वो श्रापित है, उनको और क्या श्राप दे? ये श्राप है उनके लिए। ओके, कि वो रोना और दांत पीसना जहां पर होगा वहां पर वो डाले जाएंगे। हालेलुया। तो इतना खतरनाक भविष्य के अंदर ये महामारियों के बीच में लोग मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो दुष्ट के संतान बने हुए जा रहे हैं। ओके, वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो सब दुष्ट की संतान होकर मरते जा रहे हैं। और वहां पे वो किधर लैंड उसका होने वाला है? जहां पर आग का कुंड है। समझ में आया? तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एक स्पेशल रखा है, यहाँ पर एक स्पेशल बात दी है, सब ठोकर के कारण का और कुकर्म करने वालों का इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर सीधे लोग नहीं बोला है। ओके, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिधाई से चलते हैं, जैसा कुर्नेलियुस था। कुर्नेलियुस सिधाई से चलने वाला इंसान था, दान धर्म करने वाला इंसान था। वो यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदी परमेश्वर के जो यहूदी लोग थे उनके ही बीच में रहते रहते उसने उनके सारे नियमों को पसंद किया, उनको मानता गया। तो ऐसे भी अन्य जाति के लोग हैं जो ठोकर नहीं देते हैं मसीहों को। ओके, जो उनके साथ संगति में अच्छे ही व्यवहार से रहते हैं, उनके बारे में नहीं कहा, ये खास कैटेगरी के लोगों के बारे में कहा है, और वो है ठोकर के
कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। सीधे अन्य जाति वाले जो लोग सीधे रास्ते चल रहे उनके बारे में नहीं कहा, हाँ, स्पेशल कैटेगरी है, वो मसीहों को ऑफेंड करते हैं, ओके, गुस्सा दिलाते हैं, ठोकर के कारण बनते हैं, ओके, और कुकर्म करते हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा। बात को समझ लीजिए, हर एक अन्य जाति को यहाँ पे नहीं डाला जाएगा, ओके, जो ठोकर के कारण बनेंगे और कुकर्म कर रहे हैं उनको डाला जाएगा। मसीहों के विरोध में यहाँ पे बोला है उसके राज्य में, ओके, उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, ओके, और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और वहां पर डाला जाएगा। समझ में आया? तो हमारा मसीहों के बारे में परमेश्वर कह रहा है, तो आप मसीह हो और अगर छुप छुप के आप पाखंडियों के साथ मिल बैठते हो, उसमें आपको भी पकड़ लिया जाएगा, ओके। तो ये मत समझो कि मसीह का लेबल लग गया है तो बस आप छिपे छिपे रहेंगे सब कुछ। अरे भाई, स्वर्गदूत से कहाँ भागोगे, और जब आग के कुंड में डाले जाओगे तब पता चलेगा पाखंडियों के साथ आप मिल बैठते थे, कहाँ छिपोगे तब। उससे अच्छा अभी खुल्लम खुल्ला पाखंडियों को एक्सेप्ट करो, है ना। क्यों आप छुपा छुपा के मसीह बनते हो और मसीह बनने के बाद छुपा छुपा के पाखंडियों के पीछे चलते हो, ऐसा क्यों? ओके, क्योंकि यहाँ स्वर्गदूत खुला तमाशा करने वाला है, तब कहाँ भागोगे आप लोग? कौन सा नकाब पहनोगे आप, है ना? कोई फायदा नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का असलियत को हमने पहचान लेना है और अन्य जातियों के लिए हमने प्रार्थना करना है, ओके। यहाँ क्या लिखा है? उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हमारा भविष्य है ये, ओके। जिसके कान हो वह सुन ले ओके। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, परमेश्वर पिता के राज्य में, ओके, यीशु के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। ये हम मसीहों का भविष्य है। जिसके कान हो वह सुन ले। तो हमारे पास ये वचन को समझने के अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास परमेश्वर की रोशनी आई हुई है, परमेश्वर के साथ का हमारा कनेक्शन बन चुका है, क्योंकि वेदी के ऊपर यीशु मसीह का लहू वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया, ओके, स्थापित कर दिया है। इसकी वजह से हम ये बातों को समझ पाए, है ना। दुनिया के कितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो ये कनेक्शन है परमेश्वर का हमारे लिए, और ये ज्योति हमारे अंदर चमक चुकी है, और ये सूर्य के समान हम चमकने के लिए भविष्य मिला है हमको, आमीन। तो ये रास्ता छोड़ना नहीं है, ये मार्ग सत्य जीवन हमारा हिस्सा है। इसके अंदर शैतान हमको निराश कर सकता है, वो हमारे विश्वास को डगमगा सकता है, चोट पहुंचा सकता है हमको, कोई भी व्यवहार कर सकता है, कुकर्म तक के व्यवहार उसको पता है, लेकिन हमने फिर भी परमेश्वर के रास्तों में ही बने रहना है, और हमारा भविष्य हमको खोना नहीं है। ये हमारा भविष्य है, ओके। हम सूर्य के समान चमक रहे हैं उसके राज्य के अंदर, आमीन। हमें धर्मी कहा गया है, इस पोजीशन से नीचे नहीं उतरना है, आमीन। अपने आप को डिप्रेशन में डाल के हम अपने कोई भी अवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पोजीशन में ये कुछ भी नहीं है जो शैतान किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। वो कोई भी मायने नहीं करता है शैतान किस प्रकार से हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, वी डोंट केयर, क्योंकि उसका बदला लेने का सारा इंतजाम परमेश्वर ने दिखा दिया है। आग के कुंड में डाला जाएगा और रात दिन वहां पर वो रोना रहेगा और दांत पीसना रहेगा। क्या चाहिए आपको, और क्या बदला ले सकते हैं आप? और उसके बाद ये भी है कि वो बच के भाग नहीं सकते। आप पुलिस से बच के भागो, ओके, प्राइम मिनिस्टर से बच के भागो, इस देश से बच के भागो, दुनिया भर में भागो, यूनिवर्स के बाहर भागो, आसमान में, चांद में, सूरज में घूमते बैठो, फर्क नहीं पड़ता है, स्वर्गदूत कहीं पर से भी आपको पकड़ लेगा। हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए आप उनके कोई व्यवहार से खेदित मत हो, कोई व्यवहार से आप विचलित मत हो, क्योंकि उनका सब कुछ बदला का अरेंजमेंट परमेश्वर ने लिख के रख दिया है। जिसके कान हो वो सुनेगा, ओके। जिसके अंदर परमेश्वर की रोशनी आई तो वो परमेश्वर की दया के कारण इस बात को मान लेगा और अपने आप को रास्ता देगा कि यीशु मसीह में चले आए।
आमेन। नहीं है तो फिर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थनाएं उनको परमेश्वर दया देगा और उनको उस रास्ते से बाहर निकालेगा। आमेन। तो ऐसे तरह से हमारा मसीह जीवन का पहचान ये वचन में से हमको मिलता है और दुष्ट के बारे में परमेश्वर कैसे समझाता है वो भी हमको पहचानने के लिए मिला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। इस समय आपने जो वचन के प्रकाशन हमको दिए, यही हमारी जड़ में मजबूती है, यही हमारे तेल को पिता जिंदा रखता है। और परमेश्वर हम दिन और रात में परमेश्वर हमेशा तेरे नाम में जीतते हुए जाते हैं। सारे भली बातों के लिए आपको धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स कर और नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।